مومنات پلیز آپ ذرا آگے تشریف لے آئیے، بلکہ بہت زیادہ ذرا سیم تھنگ کل کی طریقے سے پلیز دیکھیں میری کوئی نو سیل فون، اوکے سائلنٹ کر لیجیے اور اپنے پرسوں میں ڈال دیں. 1 گھنٹے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، خدا نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو، کچھ بڑوں کو خبر ہو جاتی ہے، وہ آپ تک پہنچا دیں گے. لو ٹیکسٹ میسیجنگ پلیز، اوکے. اینڈ سیم تھنگ کل کے طریقے سے جب لوہے کے لیے کھڑے ہوں تو پلیز ذرا 2 صحیح سے بنا دیجیے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی و اولاد علی بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجهم. شہنشاہ کائنات امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجهم. برائے روح فاطمہ زہرا بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجهم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشافي ذنوبنا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا، صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض مدينة، سيدي وسيدي الثقلين، مولانا ومولى الكونين، إمامنا وإمام القبلتين، جدي الإمام حسن والحسين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين، هذا اليوم إلى يوم الدين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجة الله على العالمين. روحي وأرواحنا المؤمنين والمؤمنات لك الفداء. السلام على إمام زماننا ولی نعمائنا صاحب امرنا الحادی اہل امہ طاؤس باہل جنہ الامام الحق القائم المنتظر مہدی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم عجل فرجهم وسهل مخرجهم
وقرب زمانهم وأخلق آداهم وكثرة أنصارهم وآوانك اللهم انفعنا بحبه وشرنا في زمرته وتحت لواء الحمد آمین یا رب العالمین. سلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وكتاب المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كتبنا من الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مومنات، صواران سید سجاد، کنیزان زینب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تر تعریف اس رب دو جہاں کے لیے ہے جو کائنات کا رکھوالا ہے، ہمارا رب ہے، جس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر انسان چاہ کر بھی ادا نہیں کر سکتا. بے شک کہ آیا میرے اور آپ کے چوتھے امام عبادت گزاروں کی زینت سبحان اللہ اور سجدے کرنے والوں کا سید، سبحان اللہ، جس نے سجدے کا اصل مقصد سمجھایا بے شک کہ حریت میں سجدے ہوتے ہیں جب انسان فری ہوتا ہے، لیکن سجدے پابند سلاسل ہو کر کیسے کیے جاتے ہیں. کبھی جلیل قناتوں کے درمیان سجدے کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر سجاد مصیبتوں میں بھی جس کا شکر ادا کر رہا ہے پھر اس کو رب کہتے ہیں، مالک کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، گاڈ کہتے بے ہیں. شک وہ ذات کے جس کے سامنے وہ مصیبت زدہ جھک جائے. اور یہی امام صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے درمیان ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اے انسان، اگر تو خدا کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہے، if you want to even count the blessings، کہا تو ان کے شمار کر نہیں سکتا. بے شک اور اگر تو شکر کرنا چاہے، آیا امام ارشاد کرتے ہیں کہ ابھی میں ایک اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ اتنے فراوانیاں اور نعمتیں کھول دے گا. بے شک ابھی یہاں میں نے ایک نعمت کے لیے، میرے مولا ایک مرتبہ سفر میں تھے اور سفر میں گھوڑے سے اترتے تھے، اپنی سواری سے زمین پر گر جاتے تھے. اللہ اکبر. ائمہ کا جو دروازہ ہوتا ہے نا، میری اور آپ کی درسگاہ ہے، وہ بے شک تربیت کا وہ مقام ہے. بے شک یہاں کہتے راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ پورے دور سفر امام used to get onto his horse، پھر دوبارہ اتر جاتے تھے. اتر کے زمین پر، ریگستانوں کا سفر، زمین پر شکر کرتے تھے، سجدے بجاتے تھے، پھر دوبارہ گھوڑے پر سوار. تو راوی نے پوچھا کہ مولا، یہ آپ کا پورے دوران سفر، یہ آپ کا کبھی گھوڑے سے اترنا، کبھی چڑھنا، یہ شکر کرنا. تو کہتے کہ میں کیا کروں کہ جب میں گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں تو میری سانسیں جو چل رہی ہے، میں اس کا شکر ادا کرنے کی ارادے سے زمین پر سبحان اللہ. اور جب میں زمین پر ہوتا ہوں تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تو نے اس ریگستان میں مجھے سواری والا بنایا. اور کبھی میں سواری پر چڑھتا ہوں تو خدا کو میں اس چیز کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار تو میری منزل تک پہنچانے میں میری مدد کر رہا ہے. یعنی امام ہر قدم پر شکر ادا. سبحان اللہ. اور یہ طریقہ کار ہوتا ہے. بے شک
اس مکتب سے, اس گھرانے سے کہ جس سے میں اور آپ وابستہ ہیں, جسے مکتب آل محمد کہتے ہیں. صلی اللہ محمد والے محمد وجل اس مکتب میں ہمیں درس مل رہے ہیں. بے شک. لشکر امام زمان میں پہنچنے والوں کی صفات جانتے ہیں آپ کہ ہمارا عشرہ ان مراحل سے گزر رہا ہے کہ حسین نے تو اپنے 72 کو چن کر کے ان 72 کو منزل کمال تک پہنچا دیا کہ رہتی قیامت تک اگر نام مٹنے ہیں سب کے مٹ جائے, صفحہ ہستی سے آپ ان 72 کا نام نہیں مٹا. بے شک بے شک بے شک. اور the amazing fact was کہ یہ نہیں تھے سارے کے سارے بنو ہاشم کے گھرانے کے, نہیں تھے سارے کے سارے سید زادے, لیکن کمال کی منزلوں پر پہنچے تھے کہ صبر اور شکر کی صفات ان میں تھی. ان کے اندر وہ صفات تھی کہ جو حسین کے لشکر میں ہونے کی ضرورت تھی. اور حسین کا بیٹا بھی جب آئے گا تو وہی لشکر کو جمع کرے گا. تو جب حسین کے لشکر میں ہم نہ پہنچ سکے اور فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ ہماری صدا ہوتی ہے, تو پھر اس صدا والا کس قدر امام کے لشکر میں پہنچے, اس کو وہی کیریکٹرسٹکس ہونی چاہیے, اس کے اندر وہی صفات ہونی چاہیے جو حسین کے لشکر میں تھی. اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کل آپ نے سنا کہ خداوند متعال سوال کرتا ہے کہ کیا تم نے یہ دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا؟ یاد رکھو یہ دنیا بہت کم ہے آخرت کے سامنے. اور پھر اللہ نے انڈورس کر دیا یہ کہہ کر کے کہ میں نے تمہیں ایک لارجر پرپس کے لیے کریٹ کیا ہے, ان چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے نہیں خلق کیا. اور جس چیز کو علی نے سمجھا دیا کہ یاد رکھو جب تم کمانا چاہ رہے ہو, جب تم گیدر کرنا چاہ رہے ہو تو یہی دنیا میں گیدر کرنا ہے. اور اس معرفت کی منزل پر اگر کوئی چیز تمہارے لیے رکاوٹ ہے تو یہی دنیا ہے. اس سے یاد رکھنا, اس سے خبردار رہنا. منزل یہاں تک پہنچی تھی اور امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جب ہمارا وہ بیٹا دنیا میں آئے گا کہ جس بیٹے کو قرآن مجید نے چند چیزیں بیان کی ہے کہ جو مومن کے لیے کرنا ضروری ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے سورہ مبارک یونس آیت نمبر 20, اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن کے اندر کچھ چیزیں جو اللہ ہمیں حکم دیتا ہے جیسے کہ نماز پڑھو, کچھ چیزیں ہیں کہ روزہ رکھو, لیکن ان عبادتوں میں اللہ شامل حال نہیں ہوتا. لیکن ایک ایسی عبادت ہے جس میں خدا شامل حال ہے کہ سورہ یونس میں اللہ کہتا ہے تم انتظار کرو, میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اور جب تم انتظار کر رہے ہو تو you should know who you are waiting for. اور اس کو کہتے ہیں معرفت. میں مجلس کے 5ویں مرحلے میں پہنچ گئی اور کل مجھے بچیوں نے آ کر پوچھا کہ کین یو ایکسپلین دا ٹرم معرفت, معرفت کا مطلب کیا ہے؟ تو معرفت کا مطلب میں اور آپ کیا سمجھیں؟ آئیے مدد لیتے ہیں اس امام سے کہ جس کا لقب رضا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. برائے خوشنودی امام رضا ایک ملی جلی سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اس امام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ امام رضا کا زوار وہ شخص جو پہنچ جائے مشہد مقدس, پروردگار کرے کہ ہم سب چلے جائیں. جب آپ مشہد پہنچتے ہو تو کہا کہ جب یہ زوار کو ریز کیا جائے گا قیامت کے دن تو کہا کہ ان 4 اولے زمانے میں سے اور 4 آخر زمانے میں سے مردوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور وہ کون ہوں گے؟ تو کہا اول زمانے میں ان پیغمبران خاص جس میں حضرت نوح,
हजरत इब्राहीम, हजरत ईसा और हजरत मूसा, ये 4 अव्वले ज़माना और 4 आखिर ज़माना। तो आखिर ज़माना में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद अली मुर्तज़ा, इमाम हसनैन अलैहिस्सलाम, ये 4 आखिर ज़मान के। इन 8 हस्तियों के साथ एक रज़ा का ज़वार उठाया जाएगा, सुभान अल्लाह। और जब दस्तरखान बिछेगा तो उसको इनके साथ मेहमानी का एक शरफ इख्तियार होगा। सुभान अल्लाह। कहा तुम मेरे गरीब की जियारत के लिए कष्ट करो, यानी यू मेक अटेम्प्ट्स टू गो देयर, मेरे गरीब की जियारत करने। अनकरीब मेरे जिगर के तमाम टुकड़े अरब में दफन होंगे, एक मेरा बेटा अजम में होगा, उसकी जियारत का शरफ ये होगा कि तुम्हें जन्नत में तश्तों में उठाया जाए। सुभान अल्लाह। यानी जुस्तजू करो, यू मेक अटेम्प्ट्स टू गो टू इमाम रजा। डिफिकल्ट है लेकिन आप कोशिश करो। वो इमाम इरशाद फरमा रहा है कि याद रखो मारिफत का मतलब ये है और कुछ नहीं सिवाय ये कि इताअत। तो अब बच्चियां कहेंगी लो एक लफ्ज अभी समझ में आना, कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल था कि एक और मिल गया लफ्ज इम्पोर्ट बड़ा वाला हैवी। इताअत का मतलब क्या है? ओबीडियंस। इज दिस इजी इनफ? मारिफत कुछ भी नहीं सिवाय ये कि ओबीडियंस। ओबीडियंस। एक टीचर होती है क्लासरूम में, व्हाट डज शी एक्सपेक्ट आउट ऑफ हर स्टूडेंट्स? ओबीडियंस एक्सपेक्ट करती है कि वो जो कहती है उसकी बात मानी जाए। और जब टीचर नहीं होती क्लास में हंगामा होता है, शोरगुल होता है, nobody wants to take ownership. When the teacher comes in, जब टीचर पूछती है कि किसने शोर किया, nobody wants to take ownership. ये होती है दुनिया की जस्टिस अजीजों, ये होती है दुनिया की जस्टिस कि कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन आखिरत की ओनरशिप अलग होगी। अगर हमने कोई ऐसी हरकतें की दुनिया में, हम कयामत में कहेंगे परवरदिगार इट वाज नॉट मी, अल्लाह विल से नो, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि न सिर्फ मैं देख रहा हूँ, मेरा रसूल तुम्हें देख रहा था, मेरे वो खास मोमिनीन देख रहे थे। सूरह मुबारक तौबा आयत नंबर 105 यस्टरडेज आयत। और इमाम फरमाते हैं मारिफत इज इक्वल टू मोहब्बत, और मोहब्बत हो नहीं सकती कंप्लीट इसके सिवा कि तुम जिससे मोहब्बत करो, जो मरकज़े मोहब्बत हो, उससे तुम ओबीडियंस ना करो। एक माँ चाहती है बच्चे इताअत करें, माँ चाहती है बच्चे मोहब्बत। माँ बच्चों की मोहब्बत कैसी मोहब्बत? और उस मोहब्बत का एक शर्त यह है कि माँ फिर चाहती है कि जो तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो तो तुम फिर मेरी बात को मानो। बस मारिफत यही है कि तुम उस इमाम की मोहब्बत में अगर दावे मोहब्बत करते हो तो फिर उस मोहब्बत की कसौटी पर तुम्हें खड़ा उतरना। मारिफत इसे कहते हैं। एंड रिकग्निशन, द रियल टर्म जो आप डिक्शनरी मीनिंग ढूंढोगे तो उसका मतलब है रिकग्निशन, पहचानो कि किसकी इताअत करनी है। और इस मारिफत के अंदर आपके आइडियोलॉजीज को चेंज करना है, आपकी थिंकिंग को चेंज करना है। परसों की मजलिस में हमने बस मुख्तसर ये कहा कि आपको जब मोहब्बत के दावे आपने कर लिए तो इमाम ये समझ लो कि वो हमें हर वक्त देखता है। शायद कल की मजलिस से परसों जब देखता है वो तुम्हें, तो फिर जैसे वही हाल कि एक टीचर मौजूद हो क्लास के अंदर तो फिर बच्चे अपने बेस्ट बिहेवियर पे रहते हैं। हमारा इमाम ये हम सोचे कि गैबत है तो क्या हुआ, वो हमेशा मेरे सामने। बेशक मारिफत की ये मंजिल है कि गैबत मेरे मौला मेरे हमेशा सामने है। और कुरान मजीद फरमा रहा है कि एक जमाना वो आएगा, लक़द कतबना मिन ज़ुबूर, हमने दाऊद की किताब में लिख दिया, दाऊद की किताब में लिख दिया
और हमने इंजील और तौरात में भी लिख दिया. So now does this concept become clear कि मेहदी सिर्फ कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है कि जो इस कायनात का है और इस जमाने और इस इस्लाम का है. बेशक ये वो फिनोमेना है कि जो हर किताब में उसका जिक्र आया है. बेशक और इमाम फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमा रहा है, लक़द कतबना मिन ज़बूर मिन बाद ज़िक्र, हमने लिख दिया ज़बूर में और हमने लिख दिया उन तमाम आसमानी कुतुब में, अन्नल अर्ज़ा, surely this earth यरिसुहा, विरासत में हम देंगे उन इबादहुस सालिहून सुभान अल्लाह. और वो क्या करेंगे? तो सूरह मुबारक के हज आयत नंबर 41 फरमाती है कि those people when they inherit this earth, वो लोग जब इस जमीन के वारिस होंगे, आक़मुस्सलाह व आतैतज़्ज़कात, वो नमाजों को कायम करेंगे. तो अब मारिफत की मंजिल ये है कि कोई शिया बेनमाजी हो ही नहीं सकता. बेशक बेशक कोई शिया बेनमाजी हो ही नहीं सकता. कज़ा करने के इतने गुना डीले से पढ़ने के लिए. अजीजों, बच्चे हमेशा कहेंगे अभी वक्त है. बच्चे क्या बड़े भी कह देते हैं अभी कज़ा कहाँ हुई, अभी कज़ा कहाँ हुई. और इतना डीले करके इबादतों को न करना. अल्लाह इज नॉट इन नीड ऑफ योर प्रेयर. बेशक 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 उसको न जरूरत है तुम्हारे सजदों की. तुम्हारे सजदों के पहले भी वो अकबर था और उसकी किबरियाई में कभी कभी नहीं आ सकता. बेशक बेशक ये तो बंदा अपनी मंजिलों को तय करता है जब वो खुदा की बारगाह में सर अपनी जबीन को झुकाता है. बेशक. तो याद रखो, इस इमाम की ड्यूटी ये है कि वो इस सरजमीन को नमाजों से कायम करेंगी. और सलवात पढ़े और इमाम नमाजों को कायम कर रहे हैं. कोई शख्स मकसद करबला समझ नहीं सकता. वो आकर के रोए उन लोगों की तरह कि जैसे कोफी रोए थे. इमाम हुसैन को हर मंजिल पर, इसके कब्ल के इमाम हुसैन करबला पहुंचते, इमाम ने जब जब लोगों से सवाल किया कोफियों के बारे में, तो इमाम को यही जवाब मिला कि मौला, their hearts are with you but their swords are with बनु उमैया. यानी मारिफत मोहब्बत है, लेकिन वो मोहब्बत इताअत में ट्रांसलेट नहीं हो सकती खुफियों की. और इसीलिए तो कि ये मोहब्बत के दावे सिर्फ दावे रह गए, अमल में जब नजर नहीं आए. इताअत का मतलब है एक्शन, इताअत का मतलब है अमल. और कोफियों के दिल तो इमाम के साथ थे. जैसे कि हम कहते हैं आज मोहब्बत के मारे कि मौला आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत के मारे नमाजों को कज़ा करते हैं, मोहब्बत के मारे बेहिजाबी को इख्तियार करते हैं, मोहब्बत के मारे अपने लोगों को फरेब और धोखा देते हैं. लोग मोहब्बत के मारे किरदार तमाम गैर हुसैनी है. दुरुस्त है या नहीं? मेरा कहना गलत है, सही है? तो इमाम फरमा रहे हैं कि इताअत उसी वक्त आ सकती है कि जब तुम पहचान लो कि वो मेरा मौला देख रहा है. रिवायतों में मिलता है कि अगर ये दुनिया रुकावट है तो क्या हम किसी और दुनिया को बसाएं? मारिफत, ओबीडियंस, इताअत, अमल इसी दुनिया में करना. बेशक बेशक. अल्लाह कह रहा है सूरह मुबारक के आराफ आयत नंबर 10, कौन है जिसने अल्लाह के हलाल को हराम बनाया? कुछ लोग थे ना जो रसूल की झुरमट में बैठते थे, सारे हलाल को हराम में तब्दील करने लगे. खुदावंद मुतआल क्वेश्चन कर रहा है, किसने चेंज कर दी है शरीयत खुदावंदी को? याद रखो, मोहम्मद का हलाल
हमेशा तक के लिए हलाल है और मोहम्मद का हराम हमेशा के लिए हराम है। बेशक। और ऐसी दुनिया को छोड़ करके कोई जंगल को बसाना हमारा मजहब ईसाइयत और हिंदुइज्म की तरह नहीं है कि जब परहेज करो दुनिया से तभी मंजिल कमाल पर पहुंचोगे। यहाँ पर तो दुनियादारी निभानी है कि फिर क्या जवाज है कि पसीना से तरबतर है एक शख्स कि जिसको मदीने की गलियों में काम करते देखा। लोगों ने पूछा पांचवें इमाम से कि मौला दुनिया के पीछे तो इतना दौड़ रहा है कि तेरे बदन से पसीना तर हो रहा है। मौला ने कहा अभी मैं बेहतरीन इबादत में मुब्तला हूँ, मैं अपने घर वालों के रिस्क का इंतजाम कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ये दुनिया में रहकर कमाना। सुभान अल्लाह। There is no other planet for us. हमको यहीं रहना है। उस्मान बिन मखतूम रसूल के जलीलुल कद्र सहाबा में से, जैसे ही सुना ना दुनिया की मजीमत रसूल की जबानी, उन्होंने हर चीज को तर्क कर दी। एक मर्तबा उसकी बीवी आई, रसूल को पता चला कि इसने पूरी दुनियादारी यानी अपना संसार हर चीज छोड़ दी। रसूल ने कहा उस्मान ये जो तुम कर रहे हो ना वो बहुत गलत कर रहे हो। याद रखो ये दुनिया तुम्हारी इम्तिहान गाह है। बेशक बेशक ये दुनिया तुम्हारा टेस्टिंग ग्राउंड है बेशक। और यही तुम्हें कमाना है, कोई और दुनिया में नहीं कमाना। और जब मारिफत हासिल भी करनी है तो यही हासिल करनी है। और इमाम इरशाद फरमाते हैं उस्मान याद रखो मेरे जद भी इस दुनिया में थे, यानी रसूल के बारे में कहा, और मेरे जद भी यहीं पर रह करके तमाम चीजों को कमा रहे थे। दुनियादारी भी यहीं हो रही थी और तमाम चीजें यहीं हो रही थी। बेशक। फिर इमाम ने कहा सुनो, मारिफत की मंजिल में ये दुनिया जब रुकावट है ना तो इस दुनिया को कॉन्कर करना सीखो। वाह सुभान अल्लाह। और इस दुनिया को कॉन्कर कैसे कर सकते हैं? तो कहा दुनिया यानी तुम्हारे नफ्स को कॉन्कर कर। वाह सुभान अल्लाह। जैसे कि हुर ने करके बता दिया। सुभान अल्लाह। नफ्स की, दुनिया की, दौलत की जंग में पिसरे साद का एक जुमला याद आ रहा है ना, जिन्होंने रे की जियारतें की है। आपको पता है क्या कहा था पिसरे साद ने? क्या कहा कि रे की हुकूमत प्रॉमिस की गई थी ना उसे कि तुम अगर हुसैन इब्ने अली के सर को काट के लाओगे तो तुम्हें रे मिल जाएगी, तुम्हें ये दुनिया की दौलत मिल जाएगी, तुम्हें गवर्नरी दी जाएगी। एक मर्तबा पूरी रात शशोपंज में निकाली और कहा कि ये आज जो मुझे प्रॉमिस किया जाता है वो तो मेरी आंखों के सामने है। रे को मैं देख चुका हूँ, आखिरत क्या कौन जाने। और आखिरत और दुनिया की जंग में जहाँ हुर जीत जाता है वहाँ पिसरे साथ हार जाता है। बेशक बेशक। बिकॉज हिज फोकस वॉज नॉट क्लियर। उसका फोकस बस महदूद था to the transitory world which is दुनिया, और हुर का फोकस बहुत बुलंद था towards that कि जैसे आशूर की रात हुसैन ने कहा था ना अपने सहाबियों से कि ये दुनिया बस महज एक पुल है जिसका एक सिरा यहाँ शहादत है और दूसरे सिरे पर मेरा बाबा तुम्हारे लिए जामे कौसर लिए खड़ा है। सुभान अल्लाह। और ये दुनिया के अंदर रहकर कमाना और इस दुनिया की तमाम तर रंगीनियों को कुरान ने इस दुनिया को बहुत इस तरह से एक्सप्लेन किया कि डू नॉट बी डिसीव्ड बाय दिस वर्ल्ड एंड इट्स लग्जरीज विल डिसीव यू। डिसीव का मतलब क्या है? विल चीट यू, धोखा देंगे तुमको। और जब ये धोखा देंगे तो याद रखो तुम्हारे हाथ खाली होंगे और तुम मारिफत की मंजिल नहीं पा सकोगे। और अक्सर आप लोगों ने मुसलसल तीसरा साल या आपकी खिदमत में, शरफ मेरा है कि मैं आपकी खिदमत में आ जाती हूँ। आप अब तक के तो अनकरीब मजलिसों से आशना कि मैं हमेशा उन उलेमा का जिक्र करना ज़रूरी समझती हूँ
کہ جب آئمہ کا ذکر آتا ہے نا تو اکثر کہا جاتا ہے بیوی وہ کہاں ہم کہاں. They were from a different تینت. لیکن یاد رکھو وہ تینت تھے کہ جس کے لیے سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے حضرت حجت کو سنا ہے کہتے ہوئے حضرت حجت سے سنا ہے میں نے کہ میرے شیعہ میری بچی کچی تینت سے بنے ہوئے سے. ہماری شیعہ ہماری بچی کچی تینت سے بنے ہوئے ہیں. سید ابن طاؤس نے سرداب میں سنا. اور جب تم امام کی خدمت میں پہنچتے ہو امام کی معرفت کی منزلوں پر آتے ہو تو ارشاد یہ ملتا ہے کہ آیت اللہ باقر الصدر جلیل القدر علماء میں سے لبنان مخروز ہے اس خاندان کا. بنت الہدا ان کی بہن. They were the victims of the tyrant Saddam. کیسے victims تھے کہ بس ایک ہی جملہ کہ جب آیت اللہ باقر الصدر کی شہادت ہوئی ہے تو آیت اللہ ہوئی اس قدر ماتم کو نہ ہوئے کہ گویا ان کا سگا بیٹا دنیا سے گیا. اور جب آیت اللہ باقر الصدر کو قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا تو ان کی بہن بنت الہدا تھی. صدام نے کیا کہا ایک جملہ تاریخی جملہ اور عنقریب ان کی فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ بنت الہدا کے بارے میں کہا کہ میں یزید جیسی غلطی تھوڑی کروں گا کہ میں بھائی کو قتل کر کے بہن کو چھوڑ دوں گا. کہ بہن نے پروپیگیٹ کیا زینب نے پروپیگیٹ کیا دین حسین کو یہاں باقر الصدر کو مار دوں گا اور اس کی بہن کو چھوڑ دوں گا. بنت الہدا کو بھی شہید کیا گیا. تو باقر الصدر اپنی کتابوں کے اندر ڈاکٹر تجانی السماوی نے بھی جنہوں نے عنقریب then I was guided ask those who know Shias are the real اہل سنہ بیوٹیفل بکس آپ کو پڑھنی چاہیے. آپ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہو نا تھوڑی سی محنت سال بھر میں آپ بھی کرو کیونکہ یہ سوالات جو ہے نا جو آپ کے اعتراضات ہیں آج عزیز تھوڑی سی توجہ یہ اعتراضات ہیں نا جو آپ کو یونیورسٹیز اور کالجز میں ہمیشہ پیش آتے ہیں ان سب کے جواب ان کتابوں میں موجود ہیں. تو تجانی السماوی صرف باقر الصدر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ I was so impressed by him کہ جب میں ٹیونسیا سے پہنچا ہوں ان کی یہاں میں دیکھنا چاہتا تھا کہ عدل الہی کیسے ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں ان کی بز میں بیٹھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ انہیں قتل کا کیس 20 منٹ میں سالو کیا. سبحان اللہ. نو ادر. یہاں پر تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے. یہ دنیا کی عدالت ہوتی ہے وہ الہی عدالت ہوتی ہے جس میں جس کی نظامت علی کرتا ہے. سبحان اللہ. نظامت علی کرتا ہے. یہ وہ مولا ہوتے ہیں اور اس کے یہ فالوورز ہوتے ہیں کہ for them then making decisions is crystal clear. سبحان اللہ. کیونکہ معرفت ہوتی ہے سبحان اللہ. علم ہوتا ہے اور علم کے لیے حصول علم عبادت ہے بے شک اور علم کا بانٹنا اس کی زکوٰۃ ہے. بے شک. کیا کہنا آپ بانٹیے اور حاصل کیجئے کیونکہ علم رکھ دیتا ہے پہلو میں پہاڑوں کا جگر. سبحان اللہ. علم رکھ دیتا ہے پہلو میں پہاڑوں کا جگر اور علم ہی بنا تھا نوح کے سفینے کا لنگر. اور جہل میدان چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور علم اٹھا لیتا ہے 2 انگلی پہ درے خیبر. چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. جہل میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے اور علم اٹھا لیتا ہے 2 انگلیوں پہ درے خیبر. تو یہ علم ہے اور یہ علم ملتا ہے اس دروازے سے. تو معرفت کی منزلوں میں علم کا حصول ضروری ہے. امام علی says that my Shias are only 3. معاف کیجئے گا میری مائیں میں اکثر تھوڑا سا زیادہ جملے انگلش میں اس لیے کیونکہ یہ
ज़माना ये है कि मेरी बच्चियां मेरे आंखों के सामने नज़र आ रही है और ये लोग चंद दिनों के लिए मेरे साथ है इनकी सहूलत के लिए, क्योंकि इनकी समझ ज़्यादा, इनकी फहम आ जाए, इनके दिलों में मारिफत पैदा करना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तो इमाम अली says that my Shias are only 3. So if I'm praying for you all, then you have to pay attention. एक सलवार पढ़े मोहम्मद मेरे शिया सिर्फ 3 है, only 3. There can be no 4th category. Number 1 या तो आलिम है, learned. Number 2 process of learning. प्रोसेस ऑफ लर्निंग के प्रोसेस में. नंबर 3 मरा हुआ. आप डिसाइड करें कि आप कहाँ होना चाहते हैं. या तो मरा हुआ यानी चल रहा है लेकिन लाशें मुर्दार. यू डिसाइड. या तो आप अब कैसे लर्न किया जाए. वी कैन नॉट, वी डू नॉट हैव द टाइम. कोई बात नहीं, तौज़ील मसाइल रख सकते हो, यूनिवर्सिटी ले जा सकते हो, कुरान ले जा सकते हो, नहजुल बलागा ले जा सकते हो. एक जुमला तौज़ी का एक मसला पढ़ लिया, यू बिकेम अ स्टूडेंट. एक आयत को पढ़ करके उस पर फिक्र की, यू बिकम अ स्टूडेंट. जरूरी नहीं है कि आप मुअम्मम बन जाओ या कुम या मशहद चले जाओ. जरूरी ये नहीं, आप अपने घर में भी इल्म हासिल कर सकते हैं. और टुडे द वर्ल्ड इज बिकम सो स्मॉल. और आज कितनी आसानी है. आपको इंटरनेट की सहूलत है, आपको किताबों की सहूलत है, आपको iPods. Use these things for positive means. Your parents have paid homes and then bought you these things. How did we know? यहाँ पर कम से कम वो लोग तो नजर आते हैं ना कि जो मारिफत रखते हैं. आयतुल्लाह बाकर सद बात नहीं और ना निकल जाए. मुझे आज मसाइब के भी हक अदा करने हैं और मातम भी करवाना है और करना है सब लोगों ने. इंशाअल्लाह शहजादी का गम है आज. तो आयतुल्लाह बाकर सद्र फरमाते हैं कि मोमिन मारिफत याफ्ता होता है. तो कहा मारिफत के दर्जे है, मारिफत की स्टेजेस है. कहा 3 स्टेजेस ऑफ मारिफत है. कहा सबसे पहले मोहब्बत है, उसके बाद मारिफत के अंदर कहा कि जिहाद यानी मेहनत करना है, और तीसरे शहादत है. इंतहाई मंजिल यह है कि मैं उसकी मोहब्बत में जान दे दूं. या सेकंड मंजिल है कि मैं इज्तिहाद करती रहूं, जिहाद करती रहूं. जिहाद प्लीज डू नॉट, बिकॉज दिस टर्म इज सो मिसयूज्ड, कि ये तलवारों वाला नहीं है. ये जिहाद अपने नफ्स के साथ है. मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को डेवलप करूं, बेटर करूं. आपको पता है ना, पहले कोई और 98 का प्रोग्राम था, फिर विंडोज 2000 आया, पता नहीं कौन कौन से. हर रोज नया प्रोग्राम आता है, हर रोज नया प्रोग्राम आता है. और तो जब दुनिया डेवलप हो रही है और आपके गुलाम, कंप्यूटर क्या है, आपका गुलाम है ना. यू आर इट्स मास्टर. आप जो क्लिक करते हो वही होता है. राइट. बिल्कुल. तो जब आपका गुलाम डेवलप हो रहा है तो मालिक क्यों ना डेवलप हो. जब ऐसी चीजें आपके सामने है कि जो डेवलप हो रही है, तो फिर क्यों ना आप डेवलप हो जाए और अपने नफ्स को डेवलप करें. मारिफत के तकाजे ये है कि अपने सोल को प्योरीफाई करो, क्योंकि इमाम ने कहा था हुसैनी हो ना, हुसैनी हो, आप अपने नफ्स को प्योरीफाई करो. और मारिफत की मंजिल में मोहब्बत कैसी हो. तो कल आपने सुना कि यहाँ मौला लोग अमल करते हैं, मौला देख लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं. मोहब्बत कैसी मोहब्बत, विच इज फुल ऑफ यकीन. थोड़ी देर के लिए मदीना चलिए. खुदा करे कि हम सब साथ मदीना चले. मदीने के अंदर अबू बसीर, सुना हुआ वाकया, लेकिन इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिन. वेरी क्विकली एंड ब्रीफली हम इसके ऊपर गौर व फिक्र करें कि अबू बसीर, 5वें इमाम उसे कहते हैं, मारिफत की मंजिल समझा रहे हैं. अबू बसीर से कहते हैं, अबू बसीर चलिए नमाज का वक्त हो रहा है मस्जिद की तरफ. तो पहुंचे मस्जिद नबवी में. दरवाजे के एक सिरे पर अबू बसीर तुम यहीं खड़े हो जाओ. मौला दरवाजे के दूसरे सिरे पर खड़े हुए. दोनों खड़े हो गए. मौला ने कहा अबू बसीर
अब जो कोई इस मस्जिद में दाखिल हो तुम उसे पूछो कि क्या तुमने इमाम पंजुम को देखा है। अब अबू बसीर जो है ना, चूंकि इताअत आफ्ता, ओबीडियंट टू मौला, क्या बात है। मौला ने सवाल किया कि अबू बसीर तुम लोगों से पूछो कि क्या तुमने मौला को देखा है। इफ इट वॉज यू एंड मी, हम पूछते वाई मौला यू आर स्टैंडिंग हियर, और मैं पूछूं तो लोग मुझे दीवाना करार देंगे, लेकिन ये अबू बसीर है जो मारिफत याफ्ता है, उसने मौला के जुमले के आगे अपनी जबान को खोलना मुनासिब नहीं समझा। जो मौला ने कहा मौला जी मौला। एक मर्तबा जैसे एक पहला शख्स आता है नमाजी मस्जिद के अंदर, इमाम ने इसे इशारा किया, अबू बसीर इससे पूछो, कहा मौला को तूने देखा है। उसने कहा मैंने मौला को 2 दिन से नहीं देखा। अब ये ताज्जुब कर रहा है। दूसरा आया, मौला ने कहा इससे भी पूछो। ये पूछता गया, कोई कहता है मैंने कल देखा था, कोई कहता है, यानी सामने इमाम खड़े हैं लेकिन लोगों को नजर नहीं आते। तो मेरा और आपका मौला है ही गैबत में। वी हैव टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स। अगर हमें उसको देखना है तो वी हैव टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो उस अबू बसीर ताज्जुब में कि मौला हर एक आता है नहीं देख पा रहा, तू यहाँ पर नफ्सो नफीस खड़ा हुआ है। तो अब आखिर में आवाज आई लकड़ी की, स्टिक की। कहा मौला कहते अब इसको पूछो। अब आने वाला कौन? अबू हारून मक्की। कौन? कि जो दोनों आंखों से नाबीना है। तो अब अबू बसीर कहता है मौला, हाथों को जोड़कर कि 10 बस्ता होकर कह रहा हूं कि मौला जब इन 2 आंखों वालों ने नहीं देखा तो ये बेचारा अंधा तुझे कैसे देखेगा। मौला ने कहा जितना हमने तुमसे कहा है ना वही करो, और अबू बसीर तुम इनसे पूछो। अब जैसे ही अबू हारून करीब आए, दोनों के दरमियान खड़े हुए, अबू हारून नियत करते हैं कि वो मस्जिद में दाखिल हो जाए कि एक मर्तबा अबू बसीर ने कांधे पर हाथ रखा, सलाम और दुआ किया, और उसके बाद कहा अय अबू हारून क्या तूने इमाम वक्त को देखा है, 5वें इमाम को देखा है। अबू हारून दाएं देखता है, बाएं देखता है, और फिर कहता है क्यों अंधे का मजाक उड़ाता है, इमाम तेरे पास खड़ा है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्ले अला मोहम्मद इमाम तेरे पास खड़ा है और तू मुझसे पूछता है। अब अबू बसीर ताज्जुब में आ गया, और जब अबू हारून अंदर चला जाता है तो फिर पलट करके ये मौला के कदमों को थाम लेता है। मौला इस बात की पूरी तफसीर तो कर दे। तो कहा ऐ अबू बसीर, जब लोगों की दिलों में मारिफत आ जाती है ना तो जरूरी नहीं कि इन आंखों से देखे, सुभान अल्लाह, दिल की आंखों से देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसीलिए अगर वो गैबत के पर्दों में है कि जो 40 पर्दों को चाक करके जो हमें देख रहा हो, और जिसकी गैबत से फैजियाब अगर हम और आप ना हो तो कौन हो। कि मौला अगर तू उसकी तरह है कि सूरज अगर बादलों के पीछे चला जाए तब भी अपनी रोशनी से दुनिया को क्या कम फैजियाब करता है। इमाम वक्त का वैसे ही मरहला है बेशक, और ये है मोहब्बत। सो दिस इज द एग्जाम्पल। आयतुल्लाह बाकर सद्र ने कहा मोहब्बत जिहाद और शहादत। तो कहा ये है मोहब्बत कि मोहब्बत फिर दिल में होती है तो आंखों की जरूरत नहीं होती, दिल से देखा जाता है। अब जिहाद के मरहले में आते हैं कि एक मर्तबा छठे इमाम का जमाना है। और इस्फहान के मोमिनीन 10 नहीं 15 सलवात पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम का जमाना, मौला खुरूज करो। बनो मैया ने मौला को इतना मुसीबत ज़दा रखा। आखिरी जमाना था, आपको पता है इमाम सादिक का दौर, बनु अब्बास अभी आ रही है, बनु उमैया लानतुल्लाह अलैह उनका जमाना खत्म हो रहा है। तब भी मौला ने होशा नशीनी की थी। कहा मौला से कि मौला आप खुरूज करिए, हम मदद करेंगे।
आप खुरूज करिए, हम मदद करेंगे। तो मौला ने कहा तुम तैयार हो खुरूज करने के लिए? कहा मौला आप कह करके तो देखिए। एक मर्तबा मौला ने कहा तुम आए कहाँ से हो? कहा इस्फहान का मैं नुमाइंदा बन के आया हूँ, मैं सफीर हूँ, एलची हूँ, आप मुझसे कहिए मैं पूरे इस्फहान को तैयार कर दूं आपके लिए। तो मौला ने कहा पूरे इस्फहान को तू बाद में कर लेना, आज इस वक्त तू ये काम कर ले कि आज इस वक्त तू ये काम कर ले कि तू घर जा करके अपने सर के जो बाल है ना वो उतार के आना। अब अजीब व गरीब ये कहता है मैं यहाँ गर्दन देने की बात कर रहा हूँ और मौला चंद बाल मांग रहे हैं। देखिए इमाम की हिकमत जो है ना, आले मोहम्मद की हिकमत मैं और आप नहीं समझ सकते। जहाँ से हमारी अक्लों की इब्तिदा होती है ना, ये इमाम होता है कि इमाम के मारिफत की इंतहा तो आप कई मरहल से गुजरोगे तो इमाम की मारिफत मिलती है। इतनी आसान नहीं होती है नफ्स को कंट्रोल करके। बेशक उससे कहा कि ये मैं मौला से कह रहा हूँ कि मैं गर्दन दे दूं, मैं जान दे दूं। मौला कहते देखिए मौला कुर्बानी का मेयार चेक कर रहे हैं। हाउ फार आर यू विलिंग टू गो? एक मर्तबा घर पहुंचा और घर में मशवरा मिला। आपको पता है औरत का मशवरा, घर में मशवरा मिला कि आप एक काम कीजिए, बाल छोटे कर दीजिए और पगड़ी बांध दीजिए, मौला को क्या पता चलेगा। अल्लाह अकबर। यही तो है ना कुरान में सूरह तौबा का ये हुक्म कि तुम्हारा अमल कुल अमल सय्यरल्लाहु व रसूलहु वल मोमिनून, तुम्हारा अमल रसूल और मोमिनून देखते हैं। बेशक। अब इसमें औरत की जो कंसल्टेशन था उसके ऊपर उसने अमल किया उसकी राय पर और पहुंचा मौला की खिदमत में। और मौला भी जानता है ना मर्जिया का बेटा है, क्या कहना, जानता है वो, बिठाए रखा उसे। पूरा दिन गुजर गया ये परेशान और मौला मुतमईन। हमेशा ऐसे ही होता है। बेशक। लश्कर यजीद परेशान, हुसैन मुतमईन। हमेशा से ये हुआ है। एक मर्तबा वो कहता है मौला मैंने अमल कर लिया। मौला ने कहा मुझे मालूम है, रुक जा। और जब शाम हुई ना, जब सारा दफ्तर बंद होने लगा तो मौला ने कहा सुन, तू अभी क्या तैयार है? अभी तू इस्फहान चला जा और जब तू इस्फहान से दोबारा जब तेरे नफ्स पर और मारिफत की मंजिलों पर तू पहुंच जाएगा कि जहां तू शहादत के लिए तैयार होगा तब तू आना। कहा मौला मैंने जो आपने कहा था वो मैंने कर दिया। देखिए जुर्रत कितनी है, मैंने कर दिया मौला। तो मौला ने कहा जो मेरी मोहब्बत में अपने चंद बाल नहीं कुर्बान कर सकता, जब वक्त मदद आएगा तो वो जान क्या कुर्बान करेगा। मेरी बहनें भी से अल अजल मौला, हम थोड़ी सी दौलत मौला के लिए अभी कुर्बान नहीं कर सकते, जान और औलादों को क्या कुर्बान करेंगे। काश हम करबला में होते, हम बेटों को दे देते, हरगिज नहीं देते, हरगिज नहीं देते, क्योंकि मारिफत की मंजिलों पर नहीं पहुंचे। The simplest test is कि हम इमाम के हक कितने अदा कर सकते हैं। क्या हमने कोई डेट फिक्स की कि हम इस डेट पर हमारे बकिया पैसे को, ज़हरा का बेटा ये नहीं कहता कि जो बचा है सब दे दो, दूसरे उलमा की तरह, दूसरे लोगों मजहब की तरह कि सब कुछ दे दो। कहते तुम खर्च करो, तुम ऐश करो, तुम इशरत करो और जो बच जाता है उसका 5वां हिस्सा दे दो। Don't asking for your बकिया दौलत। और अजीजों जब वो 5वां हिस्सा लेता है ना तो मर्जा हम पर एहसान नहीं करता, हम मर्जे पर एहसान नहीं करते कि हम देते हैं। मर्जा और अइम्मा वक्त एहसान कर रहे कि ज़हरा और मर्जिया हमारे बाकी पैसे को हलाल कर रहे। सुभान अल्लाह। अगर वो न एक्सेप्ट करे तो हम कहाँ जाएंगे? इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट हम कहाँ जाएंगे? लिहाजा ये हमारी बेनिफिट के लिए है कि मैं जो अपने मारिफत की मंजिल में ये ग़िज़ा की तहारत जरूरी है और बेनिफिट मेरी ही है कि मैं अपनी दौलत को पाक कर रही हूँ कि फिर जो लुक़मा मेरे बच्चों के ग़िज़ा में शिकम में जा रहा है वो लुक़मा ताहिर और तैयब हो। तो ये मारिफत की मंजिल। और कहा जिहाद करना तो कैसा कि मैसम मोहब्बत की मंजिलों में तुम मारे जाओगे। क्या बात।
मैसम, रुशैद, हुज्र इब्न अदी, तारीख ने इनके नाम को गोल्डन लेटर्स में लिखा है। ये होती है मारिफत। मैसम मारे जाओगे। कहा मौला कैसे? कहा मैसम तुम्हें एक दरख्त के ऊपर लटकाया जाएगा, तुम्हारी पहले दिन तुम्हारी जबान को बाहर खींचा जाएगा, फिर मैसम इसके बाद तुम्हारे हाथ और पैर आरी से काटे जाएंगे। या तो वो नबी यहया का आरी से चिर जाना था, या ये मोहब्बत का मारा मैसम। और फिर कहा मैसम तीसरे दिन तुम्हारे पेट में खंजर भोंका जाएगा। मौला फिर तो अब अली तारीफ में मैसम फिर क्या? फिर तुम्हारी जान निकल जाएगी। कहा मैसम तुम मर जाओगे ना, उसके बाद तुम्हारी लाश तुम्हारे कबीले वालों को न दी जाएगी और दरिया के पानी को बंद किया जाएगा, तुम्हारी लाश को नाले में बहा दिया जाएगा। मौला फिर कहा मैसम तुम फिर कह रहे हो? कहा मौला ये क्यों होगा? कहा मेरी मोहब्बत से तू दस्तबस्ता हो जा मैसम। कहा मुमकिन नहीं मौला। कहा मौला मुमकिन नहीं, तेरी मोहब्बत से कैसे खाली हो जाऊं? कहा मैसम फिर तुझे तमाम इम्तिहान देने पड़ेंगे। कहा मौला ये इम्तिहान कितनी मर्तबा होगा? अब अली ताज्जुब, अली के चेहरे पे ताज्जुब कि मैसम की ज़बान ऐसा सवाल हुआ कैसे? कहा मैसम क्या मतलब कितनी मर्तबा? एक मर्तबा और कितनी मर्तबा? कहा मौला अगर तेरी मोहब्बत में ये 70 मर्तबा हो जाए कि मेरा आरी से कट जाना और दोबारा जुड़ना, कट जाना और दोबारा जुड़ना, मौला मैं बर्दाश्त कर लूंगा तेरी मोहब्बत में 70 मर्तबा हो जाए, तो ये 70 मर्तबा जान तेरे लिए हाजिर। और हुज्र इब्न अदी शाम में आप जाइए ज़ियारत करें। हुज्र तुम्हें मारा जाएगा, हुज्र प्यासे शहीद किए जाओगे, हुज्र तुम्हारी लाश तुम्हारे कबीले वालों को न दी जाएगी। अजीजों हुज्र ने कहा कि मेरे पहले मेरे जवान को कत्ल कर दो, मैं नहीं चाहता कि कहीं मेरी लाश को देख करके मेरा बेटा इस दीन से मुनहरिफ न हो जाए। तो बाप ने देखा कि पहले हुज्र ने ये इम्तिहान दिया कि बाप के सामने जवान को कत्ल किया गया, उसके बाद में हुज्र को कत्ल किया गया, सर को काटा गया, हुज्र की खाल उखेड़ दी गई। और हुज्र ने जब खाल उखड़ी जा रही थी ना, हुज्र ने नजर का रुख किया और कहा ऐ मेरे सबसे सच्चे बोलने वाले आका, तेरी पेशन कोई सच निकली। ऐ सिद्दीक़ अकबर क्या मैंने तेरा हक अदा किया। ये मारिफत में जिहाद होता है और ये मारिफत में शहादत होती है। और कैसी शहादत और कैसी मारिफत कि आज ज़ैनब कुबरा मारिफत में डूबी हुई कहती है कि ये लोग मदीने से चले थे ना, तो उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चों को नफसुल महमूम में मिलता है कि सैयदा ने दोनों बच्चों को नहीं दिया था। ज़ैनब अकेली अपने भाई के साथ गई थी। एक मर्तबा ऊँटों की कतार चलने लगी कि जहाँ पर मस्जिद करीब आती है ना, वहाँ पर गर्दो गुबार का आना, उस सैयद ने कह दिया कि अब्बास पहले को लगा दो और लश्कर को रोक दो। मैं देख रहा हूँ मदीने से एक मेरा मेहमान आता है। मर्तबा ये देखा गर्दो गुबार उड़ रही थी, अचानक आवाज आई और जब सलाम होने लगे ना तो ज़ैनब का दिल बैठने लगा। किसी ने कह दिया ज़ैनब अब्दुल्ला आ गए, ऐसा न हो अब्दुल्ला मुझे वापस ले जाए। एक मर्तबा अब्दुल्ला जैसे ऊँट के पास आ गए ना, ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला मेरे हक की कसम, मुझे हुसैन से जुदा न करना। अब्दुल्ला मैं अपने भाई के बस अब्दुल्ला ने कहा, अब्दुल्ला के दोनों
क्या देखा दो नन्हे नन्हे बच्चे एक हाथ में मोहम्मद है अब्दुल्ला कहते हैं आका दादी मैंने सुना सदका देते हैं अब्दुल्ला ने कहा बच्चों को सदका करेगा हुसैन बच जाए अली अपनी मेरे लगते पानी खत्म हो गया ज़ैनब कहती हो ना मोहम्मद अगर तुम्हारे खेमे में पानी हो सकीना प्यासी मोहम्मद ने बता दिया अब शब आशूर मंजर बदला हुसैन दौरे पर निकला है अब कहने के बाद गरीब अब जो देखा दोनों बच्चे दो जानू है एक के बाद एक शहादत का जान दिया कहीं सुहैल का लाशा पड़ा है कहीं हुसैन तड़प रहा है अजीजों मुस्लिम ने हौसला मारे गए एक मर्तबा हाय बीवियों हाय कहते हैं कि अली अकबर का लाशा भी आ चुका था ज़ैनब ने उन मोहम्मद को पुकारा है मेरे ये मासूम नहीं बचेगी और मोहम्मद के लाशें आने लगे और तुम चुप जाओ अम्मा जब हम जाते हैं ना तो मामू ज़ैनब ने तो नमाज आए कर लिया और दोनों बच्चों को लेकर अपना जाए के पास जाती है ए भैया मेरा दिया घोड़े पर नहीं मालूम या नाना अली हुसैन ने देखा दोनों बच्चे लड़ने लगे बच्चों ने